به نام خدا. کلاس گذشته ما در مورد فعل گذشته دور صحبت کردیم که ساختار فعل گذشته دور چطوره، چطور ما فعل گذشته دور رو میسازیم و چطور در جملات استفاده میکنیم. اینو ما کلاس گذشته یاد گرفتیم و تمرین ها رو هم انجام دادیم و برای ساختن فعل منفی در گذشته دور اینو هم یاد گرفتیم که ما در ابتدای فعل اصلی یک نه اضافه میکنیم. مثلا نرفته بودم، رفته بودم. آمده بودم، نیامده بودم. اینجوری ما فقط یک اضافه میکنیم، میشه منفی. امروز چند چیز جدید که نیست ولی قبلا ما خوندیم، امروز فقط تکرار میکنیم، اینو یک دفعه مرور میکنیم تا شما بهتر متوجه بشوید. خب شما قبلا در مورد ضمیر فاعلی خوندید نه؟ ضمیر چیه؟ در مورد این خواندید. خب بفرمایید که ضمیر چیه؟ خانم مریم ضمیر یعنی چی؟ सर ज़मीर वो जो सर वो आपने जो बताया था जिस तरह सर वो जो हम मीम मन तू और उनके साथ लगाते हैं ضمیر یعنی چی؟ وقتی که ما میگیم ضمیر، خب جانشین اسم. अच्छा جانشین ضمیر یعنی چی؟ یک کلمه هست در واقعی که در جای اسم می نشیند، اسم را جایگزین می کند. خب کلمه ای که اسم را جایگزین می کند، یعنی اسم की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। اسم को रिप्लेस करने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए बेसिकली हम اسم की जगह पे ज़मीर को इस्तेमाल करते हैं, जायगुज़ीन कलमे की اسم را जायगुज़ीन میکنه. ये है ज़मीर. خب ضمیر این تعریف ضمیر هست که ضمیر یعنی در یک کلمه، در یک ترکیب اگر میخواهیم ضمیر یعنی چی؟ ضمیر یعنی کلمه جانشین اسم، کلمه‌ای که جانشین اسمه، کلمه جانشین اسم، اینو ما میگیم ضمیر. در زبان فارسی ما ضمیر رو به دو صورت استفاده میکنیم. دو صورت. ضمیر को दो सूरतों में हम इस्तेमाल करते हैं. خب दो हालतों में हम इस्तेमाल करते हैं. कभी हम इसको मिला के लिखते हैं यानी پیوسته می نویسیم و कभी گاهی ما اینو جدا می نویسیم. جدا یعنی اگر جدا می نویسیم اونو میگیم ضمیر جدا یا منفصل. ضمیر جدا عربی में इसको منفصل और वो मुत्तसिल कहते हैं ना عربی में. و زبان خب صورت دومش چیه؟ ضمیر پیوسته. خیلی خوب، ضمیر پیوسته میگیم یا متصل. متصل، منفصل، جدا، پیوسته. یعنی این دو نوع ضمیر ما به کار میبریم. اگر ضمیر با کلمه قبل پیوسته نوشته میشه در اون صورت ما میگیم ضمیر منفصل پیوسته یا متصل. اگر با کلمه قبلی یا بعدی وصل نشه یعنی وصل نمیشود در اون صورت ما میگیم اونو منفصل، یعنی فصل هست بین اونها، جدایی قرار داره، در اون صورت ما میگیم ضمیر منفصل. پس ضمیر متصل و ضمیر منفصل، تمام ضمایرمون یا منفصل هستن یا متصل هستن، یعنی به هر دو صورت هر ضمیر رو ما میتوانیم هم متصل به کار ببریم هم منفصل. متصل و منفصل हर दो सूरत मम्मी तवानीम बेकार भी गिरें. यानी ज़मीर को आप मुत्तसिल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मुनफसिल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट रिवीजन हम कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं. तो ये हो गई दो सूरत इसकी, अलग लिखने और मिला के लिखने के हवाले से. इसके अलावा इसकी तीन हालत है, तीन हालतें हम कह सकते हैं. से हालत दार है, से हालत दार है यानी गाही बेतौर फ़ाइल मी आयत, बेतौर फ़ाइल در اون صورت ما میگیم این ضمیر فاعلیه، subjective ما میگیم. as a when it is used as a subject it is called subjective pronoun. ठीक है. गाही बेतौर
मफऊल मियायत खैली हो मफऊल दर सूरत मा मिगी मफऊली हो व गाही به طور چی میاد فاعل مفعول ملکی ها ملکی در صورت ما میگیم ضمیر ملکی پس ضمیر از لحاظ نوشته شدن که پیوسته نوشتن یا جدا نوشتن دو صورته ما میگیم ضمیر جدا و پیوسته و از نظر نقش در کلمه گاهی فاعل گاهی مفعول و گاهی ملکیت رو ظاهر میکنه سه حالت داره میگیم فاعلی مفعولی و ملکی اینو قبلا خواندیم ما हम इसको पहले पढ़ चुके हैं ठीक है तो अब दो ज़रबे अगर आप 3 कर दे तो कितने हो गए 6 क्या सर दो ये हो गए दो सूरत को 3 हालत के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो कितने हो गए 6 हो गए तो हर ज़मीर को आप 6 तरह से कह सकते हैं हर ज़मीर के को 6 तरह से आप बयान कर सकते हैं कैसे पहले मैंने आपको सर और यहाँ हालत के तौर पे तो 9 बल्कि ज्यादा हो गए ना सर फाइली के लिहाज से भी 6 होंगे और मफूली के तो फिर ये ज्यादा हो गए ना अगर हम हालत के लिहाज से बात करें तो वो 6 ज़रबिन आप 6 ज़रबिन वो कर देना 6 ज़रबिन 6 कर दे तो 36 हो जाएंगे वो अलग है वो ज़मीर है वो खुद प्रोनोन है यानी पर्सनल प्रोनोन्स की आप बात कर रहे हैं वो जो 6 है उसकी बात नहीं कर रहे एक ज़मीर की हम बात कर रहे हैं एक ज़मीर कम से कम 6 हालत में है ठीक है एक ज़मीर कम से कम अगर सिर्फ हम आई की बात करें सिर्फ मन की तो मन जैसे मन अली हस्तम जी मन अली हस्तम इसमें जुदा भी है और पेवस्ते भी है इसमें मन भी है अम भी है देखिए दो यहाँ पे आ गए सही इन खिताब मन अस या इन खिताबम अस इसमें मिल्की आ गया हो खुदा ये मिसाल के तौर पर खुदा मन रा आफरीद खुदा ने मुझे पैदा किया खुदा आफरी यानी खुदा ने मुझे बनाया खुदा आफरीद मां भी हो सकता है खुदा ने हमें बनाया जमा बनाने के ताकि आप समझे ताकि हम को आप ज़मीर न समझे क्योंकि ये मुश्तरक है ठीक है तो 6 हालत हो गए ना तो 6 और हमारे पास टोटली 6 ज़मीर है तो 6 को 6 से ज़रब देंगे तो 36 बन जाएंगे आपके पास प्रोनाउंस 36 एक तरह से बन जाएंगे खैर मैंने एक जदवल पहले भी बनाया था आपको दिखाया था ये ठीक है तो हमारे पास बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं वो पर्सनल प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन को हम ज़मीर शख्सी कहते हैं क्या कहते हैं ज़मीर शख्सी पर्सनल प्रोनाउन ज़मीर की जमा है ज़मायर ठीक है अरबी का बनाने का तरीका है ज़मायर शख्सी पर्सनल प्रोनाउंस हो गया तो ये मुनफसिल और यहाँ पे आपको अगले पेज पे मैंने मुत्तसिल अलग अलग करके दिखाया है तकरीबन सेम है उनका इस्तेमाल का थोड़ा सा फर्क है कम से कम मुनफसिल हर जगह सेम है मुनफसिल हर जगह सेम है अलबत्ता जुमले में उसके इस्तेमाल का थोड़ा सा फर्क है जैसे कि मन है मन माँ तू शुमा ऊ आन्हा या ईशान आन्हा या ईशान आन्हा भी कह सकते ईशान भी आप कह सकते हैं ठीक है तो ये आपके पास बुनियादी तौर पर 6 ज़माइर शख्सी है 6 ज़माइर शख्सी है इसका मतलब ये है कि मन में माँ हम तू शुमा आप या तुम ऊ वो आन्हा वो जमा आन्हा वो जमा हम चूंकि उर्दू में एक ही इस्तेमाल करते हैं मुफरद दोनों के लिए जमा दोनों के लिए जैसे मन ये कलमदारम माँ ये कलमदारीम तू ये कलमदारी शुमा ये कलमदारीत ऊ ये कलमदारत आन्हा ये कलमदारन तो इसमें ये जो मन मा तू शुमा ऊ आन्हा एज ए सब्जेक्टिव इस्तेमाल हुआ है और सेपरेट इस्तेमाल हुआ है ठीक है अलहिदा इस्तेमाल हुआ है मिला के नहीं लिखा गया इसलिए हम इसको ज़माइर शख्सी जुदा कहते हैं लेकिन रोल क्या है जुमले में एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है एज ए
सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, अलग इस्तेमाल हुआ है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ज़मीरे शख्सिये मुनफसिल, ज़मीरे शख्सिये मुनफसिल हम कहते हैं इसको, मुनफसिल फ़ाइली, ज़मीर शख्सिये मुनफसिल फ़ाइली। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सब्जेक्टिव है, ज़मीर शख्सी मुनफसिल फ़ाइली, तो इसका कंप्लीट नाम ये बन जाएगा। याद ना रहे कोई मसला नहीं, आप इसको समझना है, आपको तो याद रखे तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत सारे मकामात पे, ये बहुत सारी जगहों पे ये आपकी मदद कर सकता है। ज़माइर शख्सी में भी यही है, ठीक है, ज़माइर शख्सी में भी, मिल्की में भी, मन में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे है कि ये हमेशा मिल्की, कब किस सूरत में मिल्की हम कहेंगे, जब ये किसी इस्म के बाद कसरे के साथ आ जाए, किसी इस्म के साथ कसरा आए और उसके बाद ज़मीर यही ज़माइर आ जाए, तो फिर उसका रोल चेंज हो जाता है, उसकी कैफियत चेंज नहीं होती है, बिल्कुल हालत, या यूँ समझ लीजिएगा कि उसकी किस्म चेंज नहीं होती, वो पर्सनल ही रहेगा, जुदा ही रहेगा, मुनफसिल ही रहेगा, लेकिन जुमले में उसका रोल चेंज हो जाता है। पहले यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे अब किसी चीज का मालिक है, पोसेसर के तौर पे इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है, ऑनर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसमें मन, मेरा नाम, ठीक है, इसम बे इजाफा माँ अगर आप लगा दें तो इसमें मन मेरा नाम भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, मेरा, मेरी, मेरे, तीनों हो सकते हैं। हो, ये देख लीजिएगा, हमारा, हमारी, हमारे, इसम बेइजाफा मा, जैसे किताब मन, किताब माँ, किताब तू, किताब शुमा, किताब उ, किताब आना। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है कि ये जुमले के शुरू में आ रहा है, एज ए सब्जेक्ट आ रहा है, ये किसी इसम के बाद आ रहा है और कि उसकी मिल्कियत को जाहिर कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गए दो हमारे पास। तीसरा हमारे पास है ज़माइर मफ़ऊली, यानी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। ये भी वही है, सेम वही है, यही है, लेकिन चूंकि आपको पहले भी मैंने बता दिया कि पर्शियन में मफऊल की जो अलामत है वो रा है। मफऊल की अलामत क्या है, रा। तो इसी ज़माइर के साथ, इन्हीं ज़माइर के साथ जब आप रा लगा देते हैं तो वो सब्जेक्टिव के बजाय ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। जैसे मन रा, मन रा को आमतौर पर पर्शियन में नून के बगैर लिखते हैं, मारा कर देते हैं। मन नून के साथ लिखे गलत नहीं है, लेकिन जो आम इस्तेमाल में नून के बगैर इस्तेमाल करते हैं, जब रा आ जाते हैं तो नून उसमें हस्फ हो जाता है। मारा, तूरा, आप तू में वाव को हस्फ करके लिख सकते हैं, तूरा भी लिख सकते हैं, ना लिखे गलत नहीं है। शुमारा, ऊरा, अनहारा। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, मन रा मुझे या मुझको, मारा हमको या हमें, तुरा तुझे तुझको, शुमारा तुम्हें या तुमको आपको, ऊरा उसे उसको, अनहारा उनको या उन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसका तर्जुमा कैसे करेंगे हम, मिसाल देख लीजिएगा, खुदा मन रा आफरीद, यानी खुदा मरा आफरीद, खुदा ने मुझे खल्क किया, तख्लीक किया, मुझे बनाया। खुदा मारा आफरीद, खुदा तुरा आफरीद, खुदा शुमारा आफरीद, खुदा ऊरा आफरीद, खुदा आनहारा आफरीद। तो इसमें खुदा सब्जेक्ट है, खुदा चेंज हो जाएगा तो यहाँ पे शिनासा भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो हम अगले लेवल पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये 6 ज़मीर सर है। एक चीज जी सर, मैं ये एक बात पूछ रही थी कि अगर हम इसको, जैसे ये है ना ज़मीर फ़ाइली, मन, ये कलम दारम, अगर हम इसको शॉर्टली कहते हैं, यानी ये वही चीज आ जाएगी कि कलमा अगर मैं कह दूंगी तो फिर वो ज़माइर मिल्की बन जाएगा, और अगर मैं टेंस के साथ कह रही हूँ, मन ये कलम दारम या दाश्तम या दाश्ते बूदम या फला फला, टेंस के साथ आएगा तो फिर वो ज़मीर फ़ाइली हो जाएगा। बता और रहा हूं, शॉर्टली अगर हम बगैर, अभी आ रहा नेक्स्ट जो है उसी में यही बता रहा हूं आपको। दूसरा हमारा है कि ये तो अलग से लिखा गया ना, अगर मिला के लिखना हो तो यही चीज अलग से मिला के लिखना हो तो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट नहीं था, सब सेम था, ठीक है। मुनफसिल में सब अलग अलग था, ठीक है, अलग अलग है, काबिल शिनाख्त है, सिर्फ रोल का डिफरेंट है। रोल जुमले में उन अल्फाज का रोल चेंज हो रहा है, ज़मीर का, बाकी लफ्ज की हैयत में कोई तब्दीली नहीं है, राइट। अब अगर इसी को जब हम मिला के लिखना चाहें तो थोड़ी बहुत तब्दीली है, थोड़ी बहुत तब्दीली है। वो क्या है, अगर एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मन के लिए अम इस्तेमाल करते हैं, जैसे दारम में मीम, कलम दारम या दाश्तम, ठीक है, दारम या दाश्तम, या ईम जैसे दारीम या दाश्तीम,
ठीक है, या ई दारी दाश्ती, या ईत दारीद दाश्ती, या अद जैसे कलम दारत व दाश्त। ये 6 पे अगर आप देख लें कि शख्स मुफरद के लिए माजी के अफ़आल में अलग से शिनासा नहीं है, बल्कि मसदर से नून को हस्फ करने के बाद जो सिता के गुज़श्ते बाकी रहता है वही सिवम शख्स से मुफरद का सीगा भी होता है। लिहाजा हाल के ज़मानों में द अद सिवम शख्स का शिनासा होता है। ठीक है, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं ये स्लाइड्स। तो ये हमारे पास ये भी ज़माइर है, ये भी ज़माइर है। ज़माइर क्या कहलाते हैं इसको? ज़माइर शख्सिये पेवस्ते फ़ाइली। लेकिन हमने इसको पहले क्या पढ़ा था? हमने इसको पहले एज ए वर्ब के बाद जब आता था तो हमने इसको शिनासा के नाम से पढ़ लिया था। आप इसको शिनासा भी कह सकते हैं स्ट्रक्चर के एतबार से, हम जो जबान सीख रहे हैं, ग्रामर के एतबार से आप इसको ज़मीर शख्सिये पेवस्ते फ़ाइली भी कह सकते हैं। दोनों की का मतलब सेम है। ठीक है, जैसे ज़मीर मुत्तसिल फ़ाइली को आमतौर पर शिनासा फ़ेल कहा जाता है। शिनासा ये फ़ेल, ये ज़माइर हमेशा फ़ेल के आखिर में मुत्तसिल हालत में आते हैं, यानी फ़ेल के एंडिंग में आता है। ये हमेशा ज़मीर फ़ाइली हमेशा फ़ेल के एंड में आता है। ठीक है, और फ़ाइल की निशानदेही करते हैं। फ़ाइल चाहे इस्म हो या फ़ेल जुमले के शुरू से, या फ़ेल के जुमले के शुरू से हस्फ किया जा सकता है इस्म को, लेकिन शिनासा फ़ेल या ज़मीर मुत्तसिल फ़ाइल जो फ़ेल के साथ आता है हस्फ नहीं किया जा सकता। तो ये बात याद रख लीजिएगा आप लोग कि मन को हम हस्फ कर सकते हैं, लेकिन यानी ज़मीर मुत्तसिल फ़ाइल को हस्फ कर सकते हैं, ज़मीर मुनफसिल फ़ाइली को हस्फ कर सकते हैं, ज़मीर मुत्तसिल फ़ाइली को हम हस्फ नहीं कर सकते। ज़मीर मुत्तसिल फ़ाइली को हम शिनासा फ़ेल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अम, ईम, ई, ईद और अद, अन, ये अलामतें हैं बुनियादी तौर पर। एक चीज तो ये हो गई। अब ज़मीर मिल्की क्या है? क्या सेम यही चीज है या अलग है? तो वो अलग है, सिर्फ ये अम मुश्तरक है, इसमें भी इसमें मुश्तरक है, बाकी सब अलग है। देखें आप, इसमें क्या है? अम, मान, अत, तान, अशान है, क्योंकि ये पहले वाले लफ्ज के साथ जबर के साथ आप पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे किताबम, इसमें मीम क्या है? ज़मीर शख्सिये पेवस्तिये मिल्की है। ठीक है, किताब मान हमारी किताब, किताब माँ भी आप कह सकते हैं अलग करके, मिला के अगर आप लिखेंगे तो किताब मान, किताबत किताब तान, किताब शुमा किताब तान, किताब उ किताबश, किताब आनहा किताब शान। ठीक, ज़मीर मफऊली को अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका मतलब भी वही है। ज़मीर मफऊली को आमतौर पर हम वर्ब को कंप्लीट करने के बाद शिनासा के बाद लेके आ जाते हैं। इन अलामतों के बाद जब हम शिनासा लगा देते हैं, ये ज़माइर लगा देते हैं, तो वो मफऊली बन जाता है। जैसे खुदा आफरीद, खुदा ने बनाया, खुदा आफरीदम, खुदा ने मुझे बनाया, खुदा आफरीद मान, खुदा ने हमें बनाया, खुदा आफरीदत, खुदा ने तुझे बनाया, खुदा आफरीदतान, खुदा ने तुम्हें बनाया, खुदा आफरीदश, खुदा ने उसे बनाया, खुदा आफरीदशान, खुदा ने उनको बनाया। ये ज़्यादातर शेर व शायरी में इस्तेमाल हो सकता है, या कन्वर्सेशनल जो पर्सन है उसमें इस्तेमाल हो सकता है, अदरवाइज इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। बाकी इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल होता है। तो ये ज़माइर थे जो हम पढ़ चुके थे पहले, जस्ट मैंने आपके लिए रिवाइज किया है। ठीक है, चले तो ज़माइर फ़ाइली क्या कहला, कौन से हुए हमारे पास? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस को हम मिला के भी लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं, दोनों सूरतों में लिख सकते हैं। दो सूरत है, यानी ज़माइर फ़ाइली दारा ये दो शक्ल जुदा व पेवस्ते, यानी दो अशकाल पर मुश्तमिल है, या जुदा है या पेवस्ते है। अशक्ल हा ये पेवस्ते, ये शिनासे आदत से ताक हा ये हाल गुज़श्ते इस्तिफादे में शगल। ठीक है, लेकिन जो पेवस्ता जो ज्वाइंट फॉर्म है वो कब इस्तेमाल करते हैं? ज्वाइंट फॉर्म को हम शिनासे भी कहते हैं, ज्वाइंट फॉर्म को शिनासे भी कहते हैं। हाँ। ये हमेशा 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 वर्ब के एंडिंग में आता है, वर्ब के बाद आता है। ठीक है, जो जो वो है पेवस्ते है। जैसे मन अम, आसान ज़बान में, मी रवम, आसान ज़बान में अलामत ज़मीर भी तो कह सकते हैं, अलामत अलामत ज़मीर, अलामत फाइल।
हाँ, ठीक है, अलामत फ़ाइल व अलामत ज़मीर। फाइल हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मन अम, जैसे मन मी रवम, इसमें दो जमीर इस्तेमाल हुआ है, दो जमायर का इस्तेमाल हुआ है। जैसे एक है मन, ये भी जमीर है, ये मीम भी जमीर है, दोनों सब्जेक्टिव है, लेकिन फर्क क्या है, ये सेपरेटेड है, ये ज्वाइंट है, फर्क इतना सा है। हाँ, माँ ये मुनफसिल है, वो मुत्तसिल है। मी रवीम, यानी माँ मी रवीम, ये सब्जेक्टिव है, ये ज्वाइंट फॉर्म है, दो फॉर्म्स है। बाकी इसमें सही। ये तो सेम है, सबके साथ वही रहेगा। तू मी रवि, तू और ई, शुमा मी रवि, शुमा ईद, शुमा मी रवि, ऊ मी रवत, ऊ और अद, ऊ मी रवत, आन्हा के लिए अंध, जैसे आन्हा मी रवन। तो बेबुनियादी तौर पर हमारे पास दो ज़मीर मुत्तसिल फ़ाइली, जिसे हम शनासा कहते हैं, सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है, सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसको हम कभी भी जुमले में हज़्फ़ नहीं कर सकते। ठीक है, चले अब आप कोशिश कर ले, खाने में मरियम आप बता दें मुझे कि ये हमारे पास अगर हमें आई को इस्तेमाल करना हो, यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, बताएं। सर मन मन इन कार्रा अंजाम मी दहम। वेरी गुड, मन इनकारा अंजाम हम। चले तर्जुमा भी बता दें। मैं इस काम को अंजाम दे दिया, या मैंने ये काम कर दिया है। देता हूँ, नो, देता हूँ। दिस इज नॉट टेंस, दिस इज प्रेजेंट टेंस। ओके, ठीक है, मैंने ये काम अंजाम दे दिया है। मैं ये काम देती हूँ। अंजाम देती हूँ, सॉरी, मैं ये काम अंजाम देती हूँ, प्रेजेंट टेंस, अच्छा, पास्ट मैं ये में नहीं है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट। मन इन खारा अंजाम मीदा, मैं ये काम अंजाम देती हूँ या दूंगी, ये भी हो सकता है। प्रेजेंट टेंस को हम तीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तीन सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो एज ए हैबिचुअल, नेक्स्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है, थर्ड फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि ठीक है, जिस तरह से हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, कल मैं लाहौर जा रहा हूं, तो लेकिन अभी तो नहीं जा रहे, प्रोग्रेसिव फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया, तो ये चीज है। ठीक है जी सर। ओके, खूब, खानम ज़ेबा। जी सर। नेक्स्ट, अगर वी को इस्तेमाल करना हो, कैसे इस्तेमाल करेंगे वी को, यहाँ पे और यहाँ पे। जी, माँ बाद अज गज़ा कमी इस्तराहत मी कुनीम। मी कुनीम, वेरी गुड, माँ बाद अज गज़ा कमी इस्तराहत मी कुनीम। तो ये शनासे का इस्तेमाल आप देख लीजिएगा, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यहाँ पे भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे सेपरेटेड फॉर्म है, यहाँ पे ज्वाइंट फॉर्म है, यहाँ पे मुनफसिल है, यहाँ मुत्तसिल है। जी आगे बात समझ में। जी सर। चले नेक्स्ट, आगे डॉक्टर जफर। आनहा हमेशा लिबास कशंग मी, आनहा हमेशे हमेशा लिबास कशंग मी पोशन। वो हमेशा, जी तर्जुमा करें। जी, वो हमेशा खूबसूरत लिबास पहनते हैं। लिखो, अलम खादिम वजहा, बाजिश शुमा भी चार, जी, ही को अगर इस्तेमाल करना हो सुबह, ऐसे, हाँ, ही ऊ करके करेंगे। ई सुबह ता जोहर, तलफोन ऊ मी, ऊ सुबह ता सुबह ना जोहर, सुब जोहर, सुबह जोहर, जोहर, टेलीफोन मी जनद। टेलीफोन 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 टेलीफोन, फोन वो सुबह जनद। जोहर टेलीफोन मी जन्नत, क्या तर्जुमा है। वो सुबह से जोहर तक मुझे टेलीफोन करता है। मुझे कहाँ है, आपने कहाँ से समझ लिया मुझे कहाँ है। अच्छा, नहीं, टेलीफोन करता है। वो सुबह से दोपहर तक टेलीफोन करता है। जी, खूब, खानों में साइमा, बारिश, सोब ताजोर, ये हो गया। अब यहाँ पे आपके लिए तीन है, देखें माशाल्लाह से, भले आप आपकी एक्सपर्टीज को देखें। थप थो अल्लाह थो थपदारी हातमन बायद दारू बेखोरी, हो यानी हो, तुम
बुखार, दारी तुम बुखार रखती हो या रखते हो, यानी तुम्हें बुखार है, तुम्हें बुखार है, लाजमी दवा खानी चाहिए, तुम्हें लाजमी दवा खानी चाहिए। दारू बुखोरी तो दबदारी ना आखिर, दारी हतमन दारू हतमन बायत खुरी बायत है हतमन बायत दारू खुरी। ठीक है। हो खानम मरियम दोबारा लास्ट वन शी जी आका। ऊ खत ऊ फारसीरा कशंग मी नवीस ऊ खत फारसी रा कशंग मी खत फारसीरा नवीसद। वेरी गुड निवीसत दाल आ जाएगा। ठीक है, जी तो अब जी उम्मीद है आप लोग जो है ना ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल का फर्क आपके समझ में आ गया होगा। जी ठीक है, दोनों सब्जेक्टिव है, दोनों सब्जेक्टिव है, लेकिन मुत्तसिल के लिए एक नाम और भी है, दो नाम है। हम शिनासे भी कह सकते हैं, ज़मीर मुत्तसिल फाइली भी कह सकते हैं, तो अलबत्ता इसके लिए दो नाम है। चले, इज दैट क्लियर? जी सर। चले ओके। ज़मीर मिल्की भी इसी तरह से है, यानी पोसेसिव प्रोनाउन। ज़मीर मिल्की यानी पोसेसिव प्रोनाउन, ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा सा फर्क ये है कि ये हमेशा इस्म के बाद आता है, इस्म के साथ मिला के आता है। चले ठीक है, जैसे सरेमन मेरा सर, ठीक है, सरेमन मेरा सर, इसको आप ज्वाइंट में लिखना चाहे तो सरम लिखेंगे। सरेमन और सरम का मतलब, दोनों का मतलब माई हेड है। ठीक है, सरे तू सरत, सरे ऊ सरश, सरे मां सरे मान, सरे शुमा सरे थान, सरे आनहा सरे शान। ठीक है, तो ये मन तू ऊ मा शुमा आनहा, इसके भी अगर मिल्की सूरत में भी या पोसेसिव फॉर्म में भी अगर हम लिखना चाहे तो उस सूरत में भी दो हालतें हैं, दो शक्ल है, एक पेवस्ते और दूसरा गुसस्ते। ये गुसस्ते हैं, सॉरी इसको हम जो है ना मुनफसिल कहें आपके लिए जुदा, और ये मुत्तसिल। ठीक है, अगर दो वॉवेल्स आ जाए ना, दो वॉवेल्स के सूरत आने की सूरत में हम एक कनेक्टिंग जो ये मियांजी या ये मियांजी हम कह सकते हैं ना, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पा अम नहीं कह सकते, पा के साथ बाद अगर आपको अम लगाना है तो एक कनेक्टिंग ये पा यम इस्तेमाल करेंगे, गुलू यम। ठीक है, तो ये जो ये है कनेक्टिंग के लिए है। ओके सर, ये इस्तेमाल तो नहीं होता ना उसमें, गुफ्तारी में तो इस्तेमाल नहीं होता शायद। क्या चीज सर ये मतलब हम कहते हैं पाम दर्द मी कोने, पायम गुफ्तारी में अक्सर हस्फ हो जाता है। हाँ, वो गुफ्तारी अलग है, फिलहाल तो ये इस्तेमाल हो रहा ना। सही, हम जो पढ़ रहे हैं सही है, गुफ्तारी सॉरी। में बहुत सारी चीजें हम हस्फ कर देते हैं। गुफ्तारी में हा भी इस्तेमाल नहीं करते, किताब हा के बजाय जी जी, किताबा कर देते हैं। ठीक है, किताब तो बहुत सारी किताबा चीजें कहते हैं, हस्फ सही। करते हैं, वो एक अलग चीज है। चले, खानम सेबा, जैसे खत्मन को खत्म किया गया है, राहतू को राहत किया गया है, इसी तरह से दस्तमन को कैसे आप मिला के लिखेंगे? अगर मिला के लिखना चाहे तो दस्तम दस्तम और सूरतश सूरतश। जी, खानुम वजीहा, दूस्त मां दिल मन, दूस्त मां दूस्तीम ना, फिर गलत किया आपने। दूस्तीम जब करेंगे ना तो ये ईम जो है ना सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ईम इज सब्जेक्टिव। ठीक है, हमें इस्तेमाल करना चाहिए मान, ये पोसेसिव है, मान इज पोसेसिव, ईम इज सब्जेक्टिव। तो ये नाउन के साथ हम कभी भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमेशा फेल के बाद आता है। तो दूस्त मां, दूस्तेमान, दूस्तीम का मतलब क्या होगा पता है? यानी दूस्त हस्तीम, इसको शॉर्ट करके दोस्त लिख हैं, सकते हैं दूस्तीम, मां दूस्तीम, यानी हम दोस्त हैं हो हम जाएगा। दोस्त हैं। तो लेकिन यहाँ पे दूस्तान, दूस्तेमान, 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 दिलमन, दिलम, दिलम, दिलमन, दिलम। आगे डॉक्टर जफर बादिश, दहाने ऊ बीमार आनहा, अगर दहानिश, दहानश नश, स्पोकन पर्सन में आप कह सकते हैं दहानिश,
लेकिन अभी जो हम सीख रहे हैं दहानश है, आ के साथ आता है, दहानश। और बीमार आनहा, जी, बीमार बीमार शान, बीमार शान, बीमार शन नहीं कहेंगे, बीमारन नहीं कहेंगे, यानी अशान। ये याद रख लीजिएगा, प्लूरल बना दें आप। 3 को याद रखें, अत अश को याद रखें, फिर उसको प्लूरल बनाएं अलिफ नून लगा के, अम से मान, मा से मान, ता से तान, शा से शान, प्लूरल बनाना है इसी को बस। खानुम साइमा, दंदान ईशान सारे शुमा। पहले आगा जी वाज़ेह नहीं, हाँ, दंदान शान सरतान, दंदाने दाने हम मिला शान के जहाँ आप सर, अटैच लिख सकते हैं, लिखें, ठीक है। जैसे दंदान शान को मिला के लिख सकते हैं तो मिला के लिखें, लेकिन बीमार शान रे के बाद हम अगला लफ्ज को, अगले हर्फ को मिला के नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे मिला के लिख ही नहीं सकते। वो आपके कंप्यूटर में भी नहीं, हमारे रस्मुल खत में नहीं, लेकिन नून के बाद अगला लफ्ज मिला के लिख सकते हैं। तो दंदान शान सर शुमा सरतान। रहतान। अब यहाँ पे अटैच तो है लेकिन मिला के नहीं लिख सकते, रे के बाद अगले हर्फ को हम उसके साथ मिला नहीं सकते। खब खानुम मरियम, लास्ट वन। जी सर, साख्तेमाने तू, जी, साख्तेमानश, साख्तमा। साख्तमान, मैंने आज वीडियो नहीं खोली, हाँ साख्तमान। याद नहीं रहा। जी जी सॉरी, द साख्तमान तू, साख्तेमानश, साख्तमा तू है, तू अच्छा तू, सॉरी, साख्तेमान, नत, साख्तमानत, साख्तेमानत, साख्तेमानत, होतेलमा, होतेलमा, होतेलमान, पहले होतेलमान। जी, होतेलमा, सर होतेलमा। दहान का क्या मतलब है? क्या? दहान, दहान मुंह, मुंह, अच्छा। हाँ जी। चले ठीक है, चले अब मतन को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन मतन से पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि कन्वर्सेशनल पर्शियन में क्या है। दारुखाने मिशे पर्शियन, स्पोकन पर्शियन में दारुखूने, दारू खाने के बजाय खूने। दंदान मिशे दंदून, दहान मिशे स्पोकन पर्शियन में अलिफ के बगैर दहान, दस्त के बजाय हम कहते हैं दस, मुआयने के बजाय मुआयने, ये के पर ये वो नहीं लगाते, कसरा नहीं लगाते। मौके के बजाय मौके, काफ के नीचे जेर लगा ले काफी है, ठीक है। खूब, अभी खानुम साइमा ने इशारा किया था कि स्पोकन पर्शियन में हम उसको ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल बात ठीक है। जैसे कि अम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है, सरम, लेकिन अत को एत कर देते हैं, सरत। सरश को स्पोकन पर्शियन में सरश, सरेमान को ये बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन मान को मून कर देंगे, सरेमान। सरेतान को सरेतून, सरेशान को सरेशून, ठीक है। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये कि पायम, फरदायम, गलूयम, गुफ्तगूयम, इसमें ये जो कनेक्टिंग ये है, जैसे मैंने यहाँ कहा या मियानजी, या मियानजी स्पोकन पर्शियन में ये बोलते नहीं आमतौर पर, स्पोकन पर्शियन में नहीं बोलते। बोले स्पोकन पर्शियन में भी अगर आप बोलना चाहे बोल सकते, गलत नहीं है। फाम, फरदाम, गलूम, गुफ्तगूम, ठीक है। ये चीजें आप देख सकते हैं। चले अब मतन पढ़ सर लेते हैं। फरदाम का क्या मतलब है? हाँ, फरदायम का क्या मतलब है? फरदायम का क्या मतलब है? कहाँ है फरदायम? मेरा कल, मेरा कल, फरदा, अच्छा, फरदाय मन, मेरा कल, फरदायमन, ठीक है, मेरा जी। मुस्तकबिल है। मेरा मुस्तकबिल हो सकता है, मेरा कल क्या होगा किसको क्या पता। जी, फरदायम। हाँ सर, खूब, ठीक है सॉरी सर। चल मैं मतन पढ़ लेता हूँ, आप लोग गौर से सुने, फिर आप लोग कोशिश करें तर्जुमा आप खुद से करें, ठीक है। जी सर। खूब, ये कलिमात दर्स रुमा किलासे गुज़श्ते खानदीन, दुरुस्त है। इमरूज फ़कत मतन रुमी खाने, मीनू बीमार शुदे बूद, शुदे बूद फ़ेल गुज़श्ते ये दूर है, फ़ेल गुज़श्ते ये दूर माज़ी है। गलूयश, इन ज़मीर मुत्तसिल है, गलूयश दार्त मीकर, इन साख्तार मना खानदीन, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे, लेकिन मीकत करता था या कर रहा था, उसका गला दुख रहा था। जी सर। व न था वानिस बेखिलास बेरावत, ये हमने पढ़ लिया है।
بعد از ظهر به بیمارستان میلاد رفت. بیمارستان میلاد یکی از جدیدترین بیمارستان‌های تهران است که در جنوب بزرگراه همت قرار دارد. پارک جدید و زیبای گفتگو و برج میلاد یا بلندترین برج ایران که 435 متر ارتفاع دارد نزدیک این بیمارستان واقعاً. موقعی که مینو به اتاق منشی رسید چند نفر نشسته بودند. کمی بعد خانم منشی مینو را صدا کرد و او وارد اتاق دکتر شد. دکتر حالش را پرسید و او را معاینه کرد. او تب داشت اما بیماری شدید نبود. دکتر نسخه‌ای برای مینو نوشت و گفت باید غذای گرم بخورد و استراحت کند تا زود خوب شود. خب चले कौन करेगा सबसे पहले तर्जुमा? वॉलंटियर यानी तो मैं कर लेती हूँ जी. मीनू बीमार शुदे بود गलोयश दर्द मी कर्द खूब व यहाँ तक कर लेती हूँ कि मीनू बीमार हो गई थी. वेरी गुड. और उसके गले में दर्द था. यानी उसका और गला दुख रहा था. उसका गला दर्द कर रहा था. उसके गले में नहीं है तर्जुम वो कह सकते हैं आप. सेंस तो वही है लेकिन उसका गला दुख रहा था. गला दर्द कर रहा था. ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट हैबिचुअल सॉरी पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट हैबिचुअल टेंस है जी. ठीक है. उसका गला दर्द कर तमरारी जी. वनतवानिस्त बी क्लास बी रवत बे क्लास बी रवत और वो क्लास बेखिलास बेरवत क्लास ई के साथ ई के साथ यानी बेखिलास बेरवत बेखलास बेरवत खिलास बेरवत और वो क्लास नहीं जा सकती थी. नहीं जा सकी और नहीं कर सकी क्लास जाए यानी ये मुजारी इल्तिज़ामी स्ट्रक्चर यही है. जो दरी जो स्ट्रक्चर है ना दरी या अफगानिस्तान में जो फारसी बोली जाती है कि उसमें हमारी तरह से जिस तरह से हम उर्दू में कहते हैं ना कि वो जा न सकी. ठीक है वो जा न सकी हम ऐसे कहते हैं ना. सकी को लास्ट में लेके आ जाते हैं तो वो भी रफ्ते न थावानिस ऐसे करते हैं. रफ्ते अफगानिस्तान की जो फारसी है ना उसकी बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है बहुत अच्छी है सर. हमसे काफी ज्यादा बहुत ज्यादा मिलती है. बाद जोहर रफ्ते न तवानिस खोरदे न तवानिस वो खा न सका. ठीक है इस तरह से करते हैं जी. बाद जोहर बे बीमारिस्तान मीलाद रफ्त बीमारिस्तान मीलाद रफ्त और जोहर के बाद वो ये हॉस्पिटल जो मिलाद हॉस्पिटल गई. ठीक है खूब. आगाई डॉक्टर जफर पढ़े आप पढ़े. जी आदाब. बीमारिस्तान मिलाद यकी अज जदीद तरीन बीमारिस्तान हाय तेहरान است. मिलाद हॉस्पिटल तेहरान के जदीद तरीन अस्पतालों में से एक है. वेरी गुड. के दर जनूबे बुजुर्ग राय के दर जुनूबे जानी है जुनूबे जनूबे बुजुर्ग राय हिम्मत करार दारत जो कि जो के की भी जरूरत नहीं है. ये के का मतलब ही जो है जो बुजुर्ग राह हिम्मत के जुनूब में जी हिम्मत हाईवे के जुनूब में वाक़ है. गुड. पार्क के ठीक है. आप पढ़े खानों साहिबा यहाँ से यहाँ तक. पार्क जदीद व ज़ीबाई गुफ्तगू व बुर्ज मीलाद या बुलंद तरीन बुर्ज ईरान के 435 मीटर इर्तिफा दारत नजदीक इन बीमारिस्तान वाक़यान. सर ये ज़ीबाई गुफ्तगू क्या है? देखें जदीद व ज़ीबा ये सिफत है पार्क के लिए. गुफ्तगू उसका नाम है.
गुफ्तगू उसका नाम है। आय है। खूबसूरत और मॉडर्न पार्क गुफ्तगू। अच्छा, और ठीक है, मिलाद बुर्ज या मिलाद बुर्ज टावर मिलाद टावर या या इसके लिए अल्टरनेट है, बुर्ज मिलाद के लिए एक अल्टरनेट जुमला है ये जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और ये बुर्ज मिलाद के या लिए ईरान का बुलंद, अच्छा, या ईरान का बुलंद तरीन टावर, बुलंद तरीन टावर बुर्ज मिलाद अ, या ईरान का बुलंद तरीन टावर जो इतनी बुलंद हाइट तरीन टावर जी जो 435 जो 435 435 मीटर बुलंदी रखता है, जी इस हॉस्पिटल के करीब वाक़ है, खैर खूब, बहुत इस अच्छा, अस्पताल के करीब। ठीक है ठीक है। शुक्रिया। खूब, खानम ज़ेबा जी सर। जी यहाँ तक पढ़िए। मोकी के खानम मीनू मरियम की बारी नहीं आई सर। आ जाएगी आई नो जी। ताक़े मुंशी रसीद चंद नफर नशस्ते भूदंत। जब मीनू मुंशी असिस्टेंट के कमरे में पहुंची, कुछ लोग बैठे हुए थे। वेरी गुड। कमी बाद खानम मुंशी मीनू रासदा करद व उ वारिदे उताके दुख्तर शुद। दुख्तर शुद। खानम मुंशी जो असिस्टेंट थी, उन्होंने मीनू को आवाज़ दी और वो दाखिल हुई डॉक्टर के कमरे में। दुख्तर हालिश दुख्तर हालिश रापुरसीद व ऊ रा मुआयने कर। डॉक्टर ने उसकी हालत पूछी और उसका मुआयना किया। हेलो खानम मरियम, देखिए खानम साहिबा को आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, आप बताएं। जी सर सबसे गलत मेरा ही होगा। अच्छा, नहीं अल्लाह ना करे। ऊ तब दाश्त अम्मा बीमारियश शदीद नबूद। उसको बहुत ज्यादा बुखार था। नहीं, बुखार था, बहुत नहीं है इसमें। उसको बुखार था, उसको बुखार था, लेकिन बीमारी शदीद नबूद, बीमारी यश शदीद हाँ, नबूद, ये शीत बहुत ज्यादा, उसकी बीमारी उसकी बीमारी शदीद नहीं ना थी। हाँ, उसकी नहीं बीमारी ज्यादा शदीद नहीं थी, यानी नहीं शदीद नहीं थी, थी। सीवियर केस नहीं थी जी। ठीक है। डॉक्टर नुस्खाई बराई मीनू नविश्त व गुफ्त बायद गजाई गरम ये ना ये गजाओ ये एक के साथ गजाई ये गजाओ ये गर्म बुखरत बेखुरद व इस्तराहत कंद कुनत ताजूद इस्तिराहत कुनत, ये जो बायत की वजह से ना मुजारी इल्तिजाम इस्तेमाल किया, बुखरत बेकुनत बेशवात ये होना चाहिए था, लेकिन गर्दन और शुदन कंपाउंड वर्ब होने की सूरत में हम बे नहीं लगाते, इस वजह से यहाँ पे बे नहीं आया, अदरवाइज इस स्ट्रक्चर में बे आना चाहिए जी। अच्छा, ताजूद खूब शवत। डॉक्टर ने नुस्खा लिख के दिया मीनू को, मीनू खाने के बारे में, मीनू के लिए कहा और कहा कि ग़िज़ा खाने के बाद, गरम खाने के बाद नहीं जी, उसको गर्म खाना खाना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए और आराम करना चाहिए जब तक ताकि वो बिल्कुल ठीक हो जाए, वो जल्दी ठीक हो जाए, ताकि जल्दी ठीक हो जाए। चलिए लेट्स गो। हो अगर खानों में वजीहा शुमा जवाब भी दीद कि बीमारिस्तान मीलाद दर कुजा वाक़ است। सर सामने नहीं आ रहे सवालात जी, सवालात सामने नहीं आ रहे। खूब, खानों में वजीहा आपके सामने आया? जी जी आया। खानों में वजीहा को आना चाहिए जी। सर, बीमारिस्तान मीलाद दर कुजा वाक़ است? दर तेहरान वाक़ है। कुजाई तेहरान जनूब तेहरान ना, दर जुनूबे कुजाई तेहरान, ये दोनों एक शाहराह या गुफ्ते है, मसलन ये एक बुजुर्गराह गुफ्ते है, बुजुर्गराह हिम्मत
در جنوب بوسه‌راه همت نزدیک پارک گفتگو نزدیک برج میلاد واقع است. اینجوری ما میتوانیم بگیم. خب آقای دکتر ظفر، محل پارک گفتگو کجاست؟ محل پارک گفتگو کجاست؟ जी आका, महल्ले पार्क के गुफ्तगू नज़दीक के मिलाद बीमारिस्तान वाक़ है. بیمارستان میلاد، نزدیک بیمارستان میلاد. خب خانم سایمان، مینو چرا به بیمارستان رفت؟ مینو چرا به بیمارستان رفت؟ یا چرا مینو به بیمارستان رفت؟ آقا مینو برای این به بیمارستان رفت چون تب داشت و گلویش درد میکرد. خب حالش خوب نبود رفت بیمارستان. خیلی خوب. خانم زیبا، او کی به بیمارستان رفت؟ کی؟ او بعد از ظهر خب بعد از ظهر به بیمارستان رفت. خب خانم مریم، قبل از دیدن دکتر کجا نشست؟ قبل از دیدن دکتر مینو منشی در اتاق منشی نشست. ما می توانیم در پذیرایی نشست، در اتاق منشی نشست. خیلی خوب. خانم وجیها، دکتر به مینو چه گفت؟ دکتر به مینو چه گفت؟ सर मैं उठ गई थी, मैंने वो लास्ट पार्ट नहीं उसका सुना था. خب من بگم آقا؟ بله بفرمایید خانم سایما، آپ بتائیں. دکتر به مینو گفت که او باید غذای گرم بخورد و استراحت کند تا زود خوب شود. خیلی خوب، خسته نباشید. پس الان دیگه روز بعدی یعنی روز آینده چهارشنبه کلاس داریم نه؟ برای چهارشنبه شما انشالله یک انشا بنویسید. انشای کلاس بعدیمون در مورد بیماری هست. خب اگر بیمار شوید چیکار میکنید؟ اگر خدای نکرده شما مریض بشوید، بیمار میشوید، چیکار میکنید؟ خونه استراحت میکنید، به دکتر میروید، بیمارستان میروید، یک کلینیک یا مطب میروید، کجا میروید شما؟ لطفاً درباره بیماری، رفتن به بیمارستان، دیدن دکتر، گرفتن دارو از داروخانه، خوردن دارو و همچنین استراحت در خانه یا خوابگاه بنویسید. خب وقتی که یه آدم مریض میشه چیکار میکنه؟ کجا میره؟ بیمارستان میره، مثلا نوبت خود انتظار میکنه، دکتر اونو معاینه میکنه، نسخه مینویسه، اون میره داروخونه، از اونجا دارو میگیره. خب بعد خونه میاد داروها رو میخوره. این جزئیات رو شما باید به صورت یک انشا بنویسید. کلاس آینده ما انشاءالله در مورد بیماری و دکتر رفتن صحبت میکنیم. خوبه؟ हम अगली क्लास में बीमारी और डॉक्टर के पास जाने और मेडिसिन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे. ठीक है, तो ये आप लोग एक छोटा सा आर्टिकल इंशाल्लाह लिख लीजिएगा. लिखना خب یه لحظه صبر کنید شما اینو تموم میکنم بعد میتونید بپرسید. خب یه جایی یادداشت کنید. خب یه مکالمه هم بین مثلا خانم منشی و مینو هست. اینو به صورت مکالمه برای شما اینجا آورده که مینو میگه که سلام خانم منشی، من مینو هستم. منشی هم میگه که سلام خانم، خدا بد ندهد. این خدا بد ندهد بفرمایید بنشینید. خدا بد ندهد ये ईरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि बीमारी के सिचुएशन में ना, जब खुदा ना करे कोई बीमारिस्तान में यार अल्लाह बुरा ना करे या खुदा ना करे आपको कुछ हुआ है क्यों आए हॉस्पिटल. हम भी कहते हैं उमन खुदा ना करे कि कोई बुरी बात हो या कोई बीमारी हो, आपको हॉस्पिटल आना क्यों पड़ा. तो खुदा बद नदिहत ऐसे माफी पे कहा जाता है कि बफरमाइद बिनशीनीत वक्ती की नौबत तान शोद, यानी नौबत तान ये ज़मीर मुत्तसिल है वही जो हमने पढ़ लिया शुमा के लिए. जब आपकी बारी आएगी सिदाए थान, यानी ये कनेक्टिंग के तौर पे आया है. सिदाए थान मिकुनम आपको बुलाती हूँ. हाला नौबत शुमा, ठीक है, हाला नौबत शुमास बफरमाइद तू, यानी तू का मतलब तू भी है, तू का मतलब दाखिल का मतलब भी है, जाए अंदर. बेफरमाइए तू यानी आप तशरीफ ले जाएं. मीनू मीगे कि सलाम आए डॉक्टर, सलाम आए डॉक्टर,
حالم डॉक्टर साहब خیلی بد است. آقای دکتر سلام، یعنی मेरी हालत बहुत बुरी है، خیلی بد است. دکتر کہہ رہے کہ بفرمایید کجایتان درد میکند. आप बताएं आपकी किस जगह दर्द हो रहा है. کجایتان چی خورده اید، आपने क्या खाया है. मीनू میگه از همه بیشتر گلویم درد میکند. सबसे ज्यादा मेरा गला दर्द कर रहा है. از دیشب چیزی نخوردم، कल रात से कुछ नहीं खाया है. ये गुज़श्ते नकली है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. دکتر میگه که لطفاً دهانتان را باز کنید. डॉक्टर कहते हैं कि मुंह खोले आ करे, ठीक है. دکتر هم میگه که لطفاً دهانتان را باز کنید تا گلویتان را ببینم. अपना गला आप अपना मुंह खोले ताकि आपका गला चेक कर सकूं, हल्क चेक कर सकूं ना, थ्रोट. तब हम दारिद, अम्मा चीजें मुहिम्मी नीस. हाँ बुखार भी है लेकिन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, कोई खास बात नहीं है, कोई खास बात, कोई अहम बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है. बरायतन नुस्खे में निविसन, आपके लिए मैं प्रिस्क्रिप्शन लिखता हूँ या लिखती हूँ, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर क्या, ठीक है, मुझे नहीं पता ना कि डॉक्टर कौन है. सही सही लिखता हूँ, लिखती हूँ, सही है. दोनों सूरत में डॉक्टर अगर जो भी है, दारू रब बुखोरी से उस खिलास न रवी, दारू खाएं यानी मेडिसिन आप खाएं. इस्तिराहत कुनी 3 दिन क्लास में खूब मिशविर, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे. मीनू मीगे की खैली मुतशक्किरम आगाई डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आगाई डॉक्टर, खुदा हाफिज. बस शुमा हम सर मुतशक्किर है ना, खूब मुतशक्किरम आगाई डॉक्टर, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज. خب پس شما انشالله یک مقاله یا یک انشا در مورد بیماری و دکتر رفتن و دارو گرفتن و دارو خوردن و استراحت کردن حتما بنویسید، ولی منتظر نمانید که روز چهارشنبه درست 1 ساعت بعد از قبل از کلاس به من بفرستید. نه، فردا بنویسید، امشب بنویسید و بفرستید برای من تا فردا برای شما چک کنم و پس فردا قبل از کلاس شما اونو میتوانید دوباره یک مروری بکنید. خب پس انشالله شما را کلاس آینده میبینیم. کلاس امروز رو اینجا تموم میکنیم انشالله.